Good morning, students. Last video I have completed with question number 2, exercise 1.1. I am going to start question number 3. Question number 3 is the check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R equals order pair of AB such as B equals A plus 1 is reflexive, symmetrical and transitive. In this relation, we have to check whether it is reflexive, symmetrical or transitive. As for the reflexive, we know that if it is given the order pair is found between A and B, and for the relation B equals A plus 1. If it is reflexive, then if A relates with A, then it will be true. A equals A plus 1. And we can see that if any real number where A and B taken from, both are taken from the set of real number. And any real number cannot be equal to its summation with 1. So it will be false here. So it cannot be reflexive. For example, if we take 2 and 2 and both belong to set of real number, then 2 cannot be equal to 2 and 2 plus 1. So it is not a reflexive relation. Again in Hindi, as we know that for reflexive, there is a relation defined between two different elements and both are connected. दोनों कैसे कनेक्ट हैं? B equals A plus 1. सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के सम में 1 ऐड कर दिया, उसमें 1 ऐड कर दिया गया तो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू के इक्वल हो गया. अब ये अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो अगर रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है? हम सेम एलिमेंट के बीच ऐसा रिलेशन खोजें. तो सेम एलिमेंट होने का मतलब क्या? ए और ए के बीच. तो क्या कोई एलिमेंट खुद और उसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो उसके इक्वल हो सकता है? जो कि नहीं. जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे हमारे रहते हैं 2 और 2, ये दोनों रियल नंबर हैं. क्या 2 plus 1 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है. इसी तरह कोई भी रियल नंबर उसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो अपने इक्वल नहीं बनेगा. तो सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. सिमेट्रिकल के लिए A and B belong to R, then B equals A plus 1. If we convert these order pair, then BA belong to R and A equals B plus 1. If it is true, then it is not true. अगर हम पहले वाली कंडीशन को सही मान रहे हैं तो ये दूसरी वाली कंडीशन की होने की पॉसिबिलिटी 0 है, मतलब नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज I have taken 2 and 1. Sorry. I have taken 1 and 2. अगर 1 and 2 आर रियल हमारे रिलेशन सेट के पार्ट हैं तो हम बोल सकते हैं कि 2 equals 1 plus 1, ये A है, हमारा ये B है. और अगर हम इस ऑर्डर पे, ये सही है, देख रहे हो कि यहाँ से 2 1 plus 1 के इक्वल हो जाएगा. बट इफ यू कन्वर्ट दीज ऑर्डर पेयर्स तब भी क्या ये सही होगा? अब B हमारा क्या बन गया? 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 2 plus 1. तो A और B के बीच तो रिलेशन डिफाइंड हो गया, लेकिन अगर हम उन ऑर्डर पेयर्स को कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे वो रिलेशन गलत हो जाएगा. इट मींस इट इज नॉट ए सिमेट्रिकल रिलेशन. इट इज नॉट ए सिमेट्रिकल रिलेशन. Again, transitive. As I have taken 1 and 2, for the transitive, what we write? AB belong to R. It implies that B equals A plus 1. BC belong to R, it implies that C equals B plus 1.
if these two order pairs are lying in our relation set, then if AC belong to R, it is reflexive. AC belong to R means C equals A plus 1. Then it will be called as ट्रांजिटिव रिलेशन. उस कंडीशन में हम ट्रांजिटिव बोलेंगे. तो हम ऐसे दो ऑर्डर पेयर बना लें जो कि इस रिलेशन को फॉलो करते हो. सपोज 1 और 2 हो गया. हम देख सकते हैं 2 equals 1 plus 1. It is B, it is A and B. B equals A plus 1 and 3 and 2. Here 2 and 3, not 3 and 2. 2 and 3. 3 equals 2 plus 1. यहाँ पे ये है, ये B equals A plus 1. अब हम 1 और 3 में रिलेशन देखना चाहते हैं. Then if 1 3 belong to R, अगर 1 और 3 का ऑर्डर पेयर रिलेशन सेट में बिलोंग करेगा तो कंडीशन क्या आएगी? Then 3 equals 1 plus 1. तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट ट्रू. अब ये A हो गया, ये B हो गया, और हम देख रहे हैं कि B की वैल्यू B equals A plus 1 के इक्वल नहीं है. इट इज A plus 1 के इक्वल नहीं, नॉट ट्रू. So it is not ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है. Okay, I hope you have understand this question. It is not possible for me to reply all the questions which are easier and you are able to understand those questions very easily. Those questions I will leave here. So you will try by yourself, and if there will be any difficulty, we will discuss in your class. Because all the questions you will write and provide you videos, then only this chapter we have to. It is very difficult to finish this chapter by providing you videos. Come on to question number 4. So that the relation R in R defined as R equals AB is reflexive, symmetrical, reflexive, transitive, but not symmetrical. What the question is, so that this relation, and where this relation is A and B taken from the real number. If any relation is defined on the set of real numbers and the real number are making their ordered pair by following this relation, A is less or equals to B, we have to prove that this relation is reflexive and transitive but not symmetrical. We have to prove here. For solution, तो सोल्यूशन जब लिखेंगे तो इसका लॉजिकल वे में लिखेंगे, और हमको लगता है लॉजिक इज नॉट सफिशिएंट फॉर आवर रिप्लाई, सो वी विल गिव द सम एग्जांपल्स आल्सो. तो लॉजिक क्या है? रिफ्लेक्सिव. अब यहाँ पे ऑलरेडी वो बता दे रहा है कि क्या तुम्हें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट ये सिमेट्रिकल नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी अगर ऑर्डर पेयर रिलेशनशिप का है और वो
पता है कि किस तरह डिफाइन किया, आपस में रिलेट किया गया है। तो अगर ऐसा ही ऑर्डर पेयर हर एलिमेंट खुद से बना ले तो उसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। अब ये क्या सही है? अब एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मुझे लिखना है। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है हम जज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया। एज 1 and 1 belong to R, 1 is less or equals to 1, 1/2 1/2 belong to R। अब यहाँ पे दो साइन लगे हैं, लेस आर इक्वल टू, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन होगी, अगर जो ए है वो बी से छोटा होगा तब भी ये रिलेशन फॉलो करेगा, इक्वल होगा तब भी फॉलो करेगा। हम देख सकते हैं कि हर रियल नंबर खुद के इक्वल होगा ही होगा, तो ये तो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये ट्रू, यहाँ लिखा ट्रू, और ट्रू होने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल प्रोवाइड होगा। फिर जैसे सिमेट्रिकल, सिमेट्री कंडीशन ए बी बिलोंग टू आर। अब ये तो हमें गिवन है, मैंने ऑर्डर पेयर इंटरचेंज की, बी ए बिलोंग टू आर, इट इंप्लाइज दैट बी इज लेस आर इक्वल टू ए एंड इज ट्रू। ये तो सही कंडीशन है, तो ऐसा ऑर्डर पेयर हमको जरूरी रिलेशनशिप में मिलेगा, और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तब भी क्या रिलेशन फॉलो करेगा। अब जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है, तो 1 2 लिख दिया मैंने, और हम जानते हैं कि 1 इज लेस देन 2। अब इसमें कोई मतलब यहाँ पे दो, ये रिलेशन किसके लिए है? लेस के लिए भी इक्वल के लिए भी, तो 1 इक्वल टू 2 के हो नहीं सकता है, लेस 2 के होगा। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तब भी क्या रिलेशन बनेगा? अब यहाँ दिख रहा है कि ये गलत हो गया। अगर मैंने इसके ऑर्डर पेयर इंटरचेंज किए तो यहाँ पे दिख रहा है कि नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है और सही नहीं है, इसके लिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है। तो इट इज नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं है। फॉर ट्रांसिटिव, ए बी बिलोंग टू आर, इट इंप्लाइज दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी, बी सी बिलोंग टू आर, इट इंप्लाइज दैट बी इज लेस आर इक्वल टू सी, देन इफ ए सी बिलोंग टू आर, it implies that A is less or equal to C. Is true. These two statements are true. Then we have to check whether it is true. तो ये दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में दिख रहे होंगे, तो मुझे देखना है कि A और C का ऑर्डर पेयर भी क्या हमारे पास अवेलेबल है। अगर ऐसा होगा तो हम उसको ट्रांसटिव बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल में फॉर्म में मान लेते हैं 1 और 2 लिया मैंने। अब ये सही है क्योंकि 1 इज लेस देन 2 हो गया। फिर 2 और 3 ले लिया मैंने, 2 इज लेस देन 3 हो गया। अब ये दो ऑर्डर पेयर इस रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हम 1 और 3 को कनेक्ट करें हम देख सकते हैं 1 इज लेस देन 3 इज आल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है, तो इट इज ट्रांसिटिव। तो ये लॉजिकल में मैंने ये लिख दिया। अब ये लिख दिया तो इसके बाद मुझे एग्जाम्पल देकर इसे वेरीफाई भी करना है, और इसके बाद का ये पार्ट छोड़ दो कि सही है कि गलत है। अगर यहाँ एग्जाम्पल लेके देख लो, वेरीफाई कर लो, और अगर ये सही होगा तो ट्रू लिख दो आगे, और ट्रू है कैसे पता ट्रू है? ये एग्जाम्पल से पता ट्रू है। गलत है कैसे पता गलत है? इस एग्जाम्पल से गलत। तो इट इज रिफ्लेक्सिव, transitive but not symmetrical. Thank you. In next video we will talk about the question number 5.